परेशानी की है ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੋਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਅੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰੋਣੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ रात के टाइम मेहमानों का दाखिला मना हाँ लेकिन कुछ सालन आए और 7 सालन लेकर आए ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋ बिजली ਦਾ ਕੋਈ यूनिट नवा नहीं लाया लॉकडाउन लान रहे दुकानें हुकूमत ने कहा 8 बजे दुकानें बंद लोग शटर डाउन करके बाहर बैठे होते हैं मैं आपको अपना मसीहा समझ रहा था लेकिन आप हमारे मसीहा नहीं हमें दबाने वाले आपकी इस पॉलिसी की वजह से लगता है कि हमको 2 नंबर काम कर रहे हैं शटर बंद एक बंदा अंदर है वो हम चोरी ऐसे देख के नहीं आ रहा सौदा कर रहे हैं ना आप ये कोई तो क्या करें भाईजान दुकान का किराया नहीं देना आपने जायज काम को भी नाजायज तरीके से करने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा फैमिली शो नकलबाजियां। नकलबाजियां में आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो सिताए हुए हैं लॉकडाउन के। ये हुकूमत की तरफ से जो 8 बजे दुकानें बंद करना कारोबार बंद तबाह बर्बाद पेट्रोल 500 रुपये महंगा वो कहते हैं कि यार मेरे तो घर का तमाम सिस्टम जो है वो सत्यानाश हो गया है वो बंटवारों की तरफ चले गए हैं भाई भाई में लड़ाई हो गई है। ये सारी चीज़ें जानते हैं कि यार ये हुआ क्या और इसका जिम्मेदार वो किसको समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्योंकि भाईजान नींद नहीं पूरी हो रही। नींद की पूरी होनी आफत साहब क्या हुआ पहले तो तुहानू मैं वालेकुम सलाम कहना ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 7 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਆਣਾ ਅੱਛਾ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋ ਪਰੋਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਅੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰੋਣੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ के टाइम मेहमानों का दाखिला मना हाँ लेकिन कुछ सालन आए और 7 सालन लेकर आए घर से बता के नहीं सारी दुनिया में होता है तमाम ममालिक में ऐसा वो घर आ रहे ने किसी अस्पताल किसी तमारदारी लिए आ रहे हैं मेरा ख्याल अच्छा है लोग फल लेके जाते ने किसी सालन पका के लेके जाते ने यानी सारे मैसेज कर दिए हम सब बीमार हैं लॉकडाउन के खुलने तक क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ अच्छा ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ अगर ਮੇਲ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ हाँ जी ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਖਲੀਜ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਵਾਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤਵਾਨਾਈ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਵਾਨਾਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ यूनिट ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ यूनिट ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਡਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਤੀ? ਹੋਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੱਤੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 70 ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਫਤ ਜਿਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ नॉर्मल हो जानी। ये आप अपनी, मैं आपको एक आपके शो की वसाजत से मैं अपनी नाकसी राय दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे अभी आते हुए आपका जो कैमरा मैन है वो बता रहा था कि वो इंग्लैंड से आया है, तो इंग्लैंड भी दुकानें फजर से लेकर मगरब तक होती हैं, सूरज के साथ वो बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है भाई, उन लोगों ने अपनी कौम को, अपने दुकानदारों को, सबको आदत डाली है। हमसे सीखा उन्होंने? हमसे सीखा नहीं, हम उनसे सीख लें। हम ये सीख लें कि अगर आपने सनलाइट के साथ ही काम करना है तो फिर इनको ग्रेजुअली आदत डालें। कैसे? आप 12 बजे का टाइम दें, 3 महीने बाद उसको 11:30 करें, ठीक है, फिर 10 पर लेकर 11 पर लेकर आए, फिर आप 10:30 पर लेकर आए, फिर 10 पर लेकर आए। सही। एकदम से ये ना हो कि टू हैंग टिल डेथ करें, वो ना करें, फांसी ना दें हमें। इसको ग्रेजुअली आहिस्ता 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 एक जो कानून है वो बना दिया जाए। बन गया ना, तो इस पे हमें टाइम भी दिया जाए ना। तो कितना का टाइम दिया जाए कि हम आप 12 बजे। कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा, कोरोना एक इमरजेंसी थी, लॉकडाउन लगा, इमरजेंसी अमल हुआ, बीमारी थी, आपको यूज हो जाना चाहिए। इनको बहुत सारे लोगों ने कहा था, आप जैसे बहुत सारे साफियों ने कहा था जी कि इस चीज को पक्का कर दिया जाए। हाँ जी, कौम को भी और दुकानदारों को भी, लोगों को भी, ग्राहक को भी आदत पड़ गई है बिल्कुल 10 बजे वाली, 8 बजे वाली। इस चीज को पक्का कर दिया जाए। फैमिली को टाइम बंदा दे, फैमिली को टाइम। अब फैमिली भाईजान सानू हर घंटे बाद घरों पहुंचते हैं, आज गए नहीं दुकान पे, काम ते नहीं जाना। हमारी फैमिली वो फैमिली नहीं है जो कहती है आज डैडी पर घर हैं, बहुत खुश हैं। वो कहते हैं आप जाएं काम पे, सुबह स्कूल की फीस आ गई है, बिजली का बिल आ गया, काम वाली के पैसे आ गए, ग्रोसरी वाली के पैसे आ गए, दूध वाले के पैसे आ गए। वो पैसे भाईजान काम पे जाने से मिलते हैं। तो अब ये क्या, कहाँ से करें ये सारे अखराजात? अब अखराजात का लड़ाई हो रही है। किससे? घर में। घर में ही क्यों लड़ते हैं? और बाहर जाके लड़े, वो हमें मारे, आप ये चाहते हैं? घर वाली का, घर वालों का, बच्चों का क्या कसूर है? सारा गुस्सा तो फिर किससे लड़े? जाके किससे लड़े? अपने आप से लड़े। नहीं, अपने आप को ठीक करें। वाह, अपने आप को कैसे ठीक करें? कोई और कारोबार, आहिस्ता आहिस्ता। अब कौन सा काम शुरू करूं जी? कोई इन्वेस्टमेंट है मेरे पास जो मैं करूं? सेकंड टाइम पे अगर आपको लगता है दूध दही लगा लें, वो खुली रहती है, वो दूध दही। वाह वाह वाह, यानी दूध खुला है ते पत्ती बंद है। यार वाह वाह, तो अगर किसी ने दूध ले लिया ते ओदे जो पत्ती पानी है ते वो ते बंद है। हुकूमत नूं तुसीं ये कहो कि सानू ना आहिस्ता आहिस्ता आदी करे, हो जाएंगे। जितनी जल्दी, जितनी फास्ट एक कौम एडजस्ट होंदी है ना गवर्नमेंट दे नाल, पूरी दुनिया च नहीं होंदी। डंडा पी रे बिगड़िया तिगड़िया दा नहीं, ये इस पे डंडे की जरूरत नहीं थी। ये तो हुकूमत की अपनी नालायकी है ना। वो जो लोग दुकानें, हुकूमत ने कहा 8 बजे दुकानें बंद, लोग शटर डाउन करके बाहर बैठे होते हैं। और अब आपने जायज कारोबार को भी ना, आप अगर आप इस बात पे आते हैं ना, मैं आपको अपना मसीहा समझ रहा था, लेकिन आप हमारे मसीहा नहीं, हमें दबाने वाले। अगर आप इस बात पे आ रहे हैं ना, जायज कारोबार भी आपकी इस पॉलिसी की वजह से लगता है कि हमको 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। शटर बंद है, एक बंदा अंदर है, वो हम चोरी ऐसे देख के वह नहीं आ रहा सौदा। यार ये कोई तरीका नहीं कर रहे हैं ना आप, ये कोई तो क्या करें भाईजान, दुकान का किराया नहीं देना। उसके बाद आपने लूट मार शुरू कर दी। क्या लूट मार शुरू कर दी? दूध का डिब्बा एक 100 रुपए का था, आप वो 50 रुपए ऊपर रख के दे रहे हैं कि जी पीछे से माल नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल हम आपको निकाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हुरमज बंद हुआ है,
भैंसों ने दूध देना नहीं बंद कर दिया जो हम डब्बे महंगे कर दें कि हुए हैं ना, नहीं, हो रहे हैं, शिकायत वो आ रही आपके है। साथ हुआ होगा, हम तो नहीं करते। शिकायत आ रही है, कोई जो शिकायत चीज का रेट 20 रुपए था वो 50 रुपए कर दिया गया। भाईजान जब आपको कोई दुकान वाले को कोई बंदा पकड़ लेगा, हाँ जी, तो उसने उसको जो पैसे देने हैं 2-3-4 हज़ार रुपया, वो किसने कहां से पूरे करेगा? तो वो आपने इधर से निकाल तो लिया, कैसे करेंगे पूरे? कमाल। आपने जायज काम को भी नाजायज तरीके से करने पे मजबूर कर दिया है। ये आपकी बात वैलिड है। इस तरह मजबूर ना करें अवाम को। सही। अवाम आपके साथ पहले ही बड़ा ताउन कर रही है। हल क्या है आप आपकी बताएं, क्या करना हर चाहिए? कड़वी दी हुई गोली, जो कड़वी गोली है ना आपकी, जिसको आपने महंगाई को कड़वी गोली बना लिया हुआ है, वो हम खाते हैं। बिल्कुल, हम पेट्रोल 400 रुपए लीटर डलवा रहे हैं ना, दिलवा रहे हैं, तो फिर इससे और क्या करें हम? तो क्यों बाइकआउट नहीं कर रहे हैं आप? कैसे बाइकआउट करें? बाइकआउट करें, मतलब घर से बाहर निकलना छोड़ दें? वॉक कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक यानी डिसिप्लिन लेके मेरी हैं। दुकान मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर है, मैं वॉक करता करता जाऊं? जब पहले ये सारी आसाइशें नहीं थी तब क्या करते थे भाईजान? हमारे उस अब्बा वक्त अजदाद? मैं नहीं था। हमारे अब्बाओ अजदाद की बात वो मैं अब अपने दादे से कैसे पूछूं? वो इस अपने वालिद दुनिया में साहब से नहीं है। पूछें। वालिद साहब कहते हैं कि जब उन्होंने होश संभाली उनका काम नजदीक था, मेरा काम दूर है, अब मैं कैसे जाऊं वहां से वॉक करता करता? बस आप एक सुकून दे जो है ना जिंदगी की तलाश में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। 3 बजे आके दुकान खुले, उसके बाद सारी रात कारोबार चले, सुबह जाके 12 बजे सोएं, फिर 3 बजे दुकान पे जाएं, ये क्या रूटीन है? आपने अभी खुद ही कहा बाहर के ममालिक में ये फजर के टाइम दुकान खुलती है, मगरिब में, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो फजर से मगरिब तक काम करने के लिए हम तैयार हैं। गैर मुस्लिम ने तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी होती। हाँ जी। मुसलमान तो फजर की नमाज पढ़ते हैं। हाँ जी। फजर की नमाज पढ़े, कारोबार पे जाएं, बरकत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद एक अच्छे तरीके से मगरिब तक कारोबार करें, मगरिब को कारोबार करके फैमिली को टाइम दें, उनके साथ बैठें। हम इस चीज के लिए तैयार हैं, एग्री भी हैं, हम इनकार नहीं कर रहे। फिर लेकिन हमें इस चीज की आदत डालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन किया सारा जाए। कुछ हुकूमत ने करना है। हाँ जी, हुकूमत की पॉलिसी होती है। हमारी कोई हुकूमत ने आज तक, वो हुकूमत के पास जो ताजर जाते हैं ना, जी, कि कहते हैं कि जी हमें कोई एतराज नहीं है 8 बजे बंद होने के हाँ लिए, जी। वो भाई साहब वो मार्केट, जिन मार्केटों के वो ताजर हैं, वो मार्केट वैसे 8 बजे बंद होती है। लाहौर की जितनी ये जो मैं जिस दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, ये जो सड़क के पे बैठे हैं, गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, ये इनकी बात है। अच्छा। अब एक मेरे साथ जो लड़का है वो 8 बजे लगाता है बर्गर का, शामी अंडे बर्गर का सही, अड्डा। सही। अब 8 बजे उसने लगाना है तो 8 बजे ही बंद है। हाँ। वो पिछले 1.5-2 महीने से घर बैठा हुआ है, उसका क्या करना है? देखिए ये अब वो दोपहर 12 बजे बर्गर लगा लेगा तो कौन खाएगा? ये जो है ना, ये आप अपना मैसेज जो है हाँ। वजीर आला पंजाब तक पहुंचाएं, वही कह रहे हैं ना पाकिस्तान तक पहुंचाएं कि बहुत सारे काम है ऐसे जनाब हाफिज साहब, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो 8 बजे शुरू होते हैं। हाँ जी। तो 8 बजे ही आप बंद कर रहे हैं। आपके पास इसका हल क्या है? आप स्टेप डाउन करें। क्या आप step down 12 करें? बजे का टाइम दें दुकानदारों को कि जी आप 12 बजे बंद करनी है, 3 महीने ये 12 बजे चले, ठीक है। और 3 महीने के बाद आप 11:30 पर कर दें, ठीक है। उसके 3 महीने बाद आप 11 बजे कर दें, उसके 3 महीने बाद 10:30 करें, ठीक और है। उसके बाद आप 10 बजे कर दें। ठीक है। को साल का, को 1.5 साल का को टाइम दें। ये कोई पॉलिसी है, कोई आदत है, ये एकदम से चेंज नहीं होगी। आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी जब बाहर के ममालिक में उन्होंने कॉलेज स्कूल से सिगरेट नोशी की पाबंदी लगाई ना, तो उन्होंने कहा कि कैसे एकदम से ये बच्चे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जी क्लासरूम में सिगरेट नहीं पीना। बच्चों ने कहा ठीक है जी हम बाहर जाके पी। ठीक है। वो क्लासरूम से बाहर जाके पीने लग पड़े। क्लासरूम उन्होंने कहा अब स्कूल के अंदर नहीं पीना। ठीक है। वो उन्होंने स्कूल के अंदर फिर पीना छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलें बाहर जाके पी लेंगे। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा कि जी पब्लिक प्लेसेस पर सिगरेट नहीं पीना। ठीक है। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर पीना बंद कर दिए। ये इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाया, एक मैकेनिज्म, एक रोल मॉडल ऐसा बनाए। वो कौम जो है ना, ये भी कौम है, ये जो आपको वोट देती है जनाब, जिनकी हम मसाले दे रहे हैं, मैं उनकी, हाँ जी, आप अपने कंपैरिजन उनके साथ कर रहे हैं। हम कौम नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो आप हर चीज अभी हुकूमत पे डाल रहे हैं। हम हुकूमत ने टैक्स ये नहीं कर देते। दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। हाँ। हमने भी तो सही होना ना। क्या सही हमारे होना? भी तो कुछ है। आप हमारा फॉल्ट बताएं जी, लॉकडाउन के जी आपका फॉल्ट क्या है? एकदम से रात को एक बंदा आता है टीवी के ऊपर, कहता है जी कल से दुकानें 8 बजे बंद होंगी। आपका फॉल्ट बताऊं? क्या आपका फॉल्ट बताएं। अब आपने फॉल्ट गिनते जाना है, बताएं फिर आपने बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बताएं बताएं। आप किसी जूतियों वाली दुकान में गए हैं कभी? हाँ जी।
वहां पे कितनी लाइट्स की जरूरत होती है और कितनी लगी होती हैं? भाई आदत डालें, कितनी लाइट्स लगी आप होती हैं? उनको कहें कि भाई अपनी ये लाइट चेक करवाएं, कौन कहेगा? 8 जो हमारी इंतजामिया जिम्मेदारी है। है। अब जैसे ये आपने- आपने पीरा फोर्स बनाई, आपने पुलिस बनाई, आपने आपकी ये सारे इदारे काम कर रहे हैं ना दुकानें बंद करवाने के लिए। क्योंकि भाईजान हमने हल तलाश करना है ना इसका। हाल ही बता रहा हूं। शरीफ आपके घर दुकानदार, में कितनी लाइट्स हैं? मेरे घर में अब जो लाइट्स आ गई है ना, मैं आपकी इतला में आपको जरा वैसे मुझे बताएं कितनी लाइट्स हैं? आपको मैं नॉलेज में इजाफा कर दूं। अब जो लाइट्स आ गई हैं ये बड़ी लो वोल्टेज होती हैं। आपके घर में कितनी ये लाइट्स एनर्जी हैं? सेवर है। लो वोल्टेज छोड़े कितनी लाइट्स हैं? मेरे घर में 4 बल्ब मेरे कमरे में लगे हुए हैं, 4-6 ड्राइंग रूम में लगे हुए हैं, नीचे पोर्च है उसके ऊपर को 7-8 लगे हुए हैं। अगर आपके दूसरे वाले कमरे में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ हाँ तो वहां पे वो लाइट अगर जल रही होगी तो क्या तकलीफ होगी ना आपको कि यार इसको बंद होना चाहिए? हाँ इस जी, लाइट को हाँ जाके। जी। तो इसी तरह मेरा कहने का मकसद ये है कि एक दुकान में अगर 4 बल्बों की जरूरत है तो 26 क्यों लगाए गए हैं? 26 लगाए हुए हैं कि वो उसकी जरा चमक आ चमक जाए के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप कह आपने रहे- उस अब आप- 26 में से 12 करवाने हैं तो आप कहें जैसे ये पुलिस वाले आपके अल्लाह आपकी हमारे मोहतरम भाई जाते हैं, एक शरीफ दुकानदार को कहते हैं ओए तेनू सुनाई नहीं देना, बंद कर तेरी मैं। नहीं ऐसा नहीं करते। ऐसे करते हमारे हैं। कोई कानून वो मेरे साथ हुआ है। नहीं हुआ होगा क्योंकि आप ठीक है ना? बदतमीजी करते हैं। आप भी मैं नहीं react करता करते हैं। बदतमीजी। वो हमेशा उनके साथ करते हैं वो जो आगे से react करते आप हैं। प्लीज आप एक ये भी मैसेज दें, क्या? वो जो आपके फोर्सेस दुकानें बंद करवाने के लिए जाती हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करें, आप करें, हम तो कर रहे हैं, हमारी तो असर नहीं होती, आपकी बात में असर है। चल, उनसे ये इस पे आगे कहें जाकर कि request वो करते हैं। दुकानदार को क्रिमिनल की तरह डील ना करें। डन, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अब मुझे बताएं हल, हमने हल देना हल यही है। हुकूमत आपने मुझे कहा कि मेरे को बड़े हल ने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਕੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਪਾਈਏ? ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਰ हल ये हाँ कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको स्टेप डाउन होना किया चाहिए। जाए। टाइम पे दुकानें बंद होनी चाहिए। एक टाइम हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता बनाना। हाँ ये जो एनर्जी क्राइसिस है, तवानाई की बचत है। बिजली पैदा करें ना, हम तो बिल पूरा दे रहे हैं। अच्छा, या तो हो ना कि लाहौर में बिल कोई नहीं दे रहा, गुजरांवाला में कोई बिल नहीं दे रहा, पंजाब में कोई बिल नहीं दे रहा, हम तो पूरा बिल दे रहे हैं। अजाफी हमें लोड शेडिंग का भी बिल देना पड़ता है। अजाफी लाइट्स जो लोग इस्तेमाल अजाफी लाइट्स आप बंद करवाएं। आप सिर्फ इतना कह देना, बजाय दुकानें बंद करवाने के आप अपना एक नोटिस या ऑर्डिनेंस लिखवाएं और कहें कि जी 8 बजे के बाद दुकानें खुली रहें और लाइट्स जो हैं वो अपनी ऑफ रखें। जो थोड़ी सी जितनी लाइट से वो गुजारा होता है वो भी आप अपनी लेकर आए चार्जिंग लाइट्स। ठीक है, वापडा बंद कर दे। ठीक है। मेन रोड्स के ऊपर आप जो हैं घरों की लाइटें रहने दें, मेन रोड्स के जहां पे दुकानदार हैं 8 बजे के बाद उनकी लाइट्स बंद कर दें। ठीक है, उनकी दुकानें खुली रखें। अगर आपने एनर्जी बचानी है तो इस तरह बचा लें। एटलीस्ट दुकानदार को दुकान खुली होगी। हाँ, उस दुकान पे पेट्रोल इस्तेमाल करके आप लोग रात को फैमिली को लेके जाएंगे, या तो फिर पेट्रोल इस्तेमाल होगा। आप 8 बजे के बाद ये कह दें क्या कि सड़क के ऊपर कोई बंदा ना निकले। ट्रैफिक वैसे ही चल रही है, गाड़ियां वैसे ही चल रही हैं, ट्रक वैसे ही चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आप लोग हैं। आप सही बात ही नहीं बताते। हुकूमत जिम्मेदार है। आप लोग हैं, आप सही बात हुकूमत को अवाम बताएं। जिम्मेदार नहीं है। अवाम क्या है? अब मुझे रात 9-10 बजे को इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। इमरजेंसी की बात और है। हाँ, एक होता है फजूल निकलना है। फजूल अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है भाईजान, अब कोई फजूल नहीं निकलता। अब तो कोई जरूरी काम भी है ना तो बंदा ये लोकल, मैं आप लोकल ट्रेन पे आया हूँ जो फ्री की हुई है इन्होंने, ये काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। कहाँ जरा चिट्टा ही नहीं, कोई चिट्टा नहीं, काला है। नहीं ताड़ा चिट्टा है, वैसे काला है। मेरी को बात ऐसी बताएं जो मैंने की है तो जो लॉजिकली रॉन्ग है। रहे हो आप सारी चीजें हुकूमत पे डाल रहे हो, हुकूमती बनाए गए इदारों पे डाल रहे हो। आप ये कह ही नहीं रहे हैं कि मेरी हमें भी सही होना चाहिए। हम वो सजेशन तो दे रहे हैं कि 8 बजे के लाइट्स बंद कर दे दुकानदार और 12 बजे तक दुकान खुली रखे। 3 महीने बाद यही टाइम 11:30 बजे तक होगा, उसके बाद 11 बजे तक होगा, उसके बाद 10:30 बजे होगा, 10 बजे होगा।
آہستہ 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 عوام کو عادت پڑ جائے گی, دکاندار کو بھی عادت پڑ جائے ٹھیک گی, ہے. اور ہم سب کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. یہ ساری دکانوں پہ عمل ہونا چاہیے, یہ ساری یہ ہول سیل مارکیٹ ہو, یہ گلی وہ محلے وہ بند کروائیں 8 بجے, وہ تو مغرب کا ٹائم ویسے ہی بند وہ تو بند ہو جاتی ہے. اس لیے تو وہ آگے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض ہمیں بھی نہیں ہے. ہمیں آہستہ آہستہ اس چیز میں لے کر آیا جائے. ٹھیک ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہماری کرائے کی دکان ہے, کرائے کا گھر ہے, بچے ہیں, اسکول ہے, بجلی کا بل ہے, کھانا پینا ہے, روٹی ہے. ہمارے پاس آپ پٹرول کی بات کر رہے ہیں, سائیکل پہ آتا ہوں میں. سائیکل پہ آتے ہیں؟ ہاں نہیں, ابھی آپ نے کہا نا میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا ہوں. وہی نا, میں یہاں پہ آپ کے آفس پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا ہوں. پبلک ٹرانسپورٹ میں ویسے آپ سائیکل دکان پہ سائیکل پہ جاتا ہوں. اچھی بات ہے, سائیکل ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہے, ہونی بھی چاہیے صحت کے لیے. جتنا پٹرول مہنگا ہو گیا نا, سائیکلیں سستی کر دیں. سائیکلیں بھی بڑی مہنگی 1 to 5 جتنا ریٹ ہو گیا. ہر جگہ پہ نا حکومت ایک چیز اگر اس کو کنٹرول کرتی ہے تو آگے ایک نیا مافیا تیار ہوتا ہے. ہاں جی, اگر آپ نے کہا کہ میں سائیکل چلانی شروع کر دی ہے, اب سائیکل والے جو ہیں انہوں نے سائیکلیں مہنگی کر دی, وہ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو ہاں جی. اس چیز کا نوٹس لینا, 40,000 35,000 کی سائیکل 70 آتی تھی ایک ٹائم, 70 آتی تھی, 32,500 28,000. میں نے جب پہلی بار 70 لی تھی نا تو وہ 70,000 کچھ کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند دے, اور آپ کو جو ہے ایک مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا کرے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ صلح کر لیں بھائی کے ساتھ. یہ فیملی کاروبار جو ٹینشن ہے نا, گھروں میں نہ لے کے جائیں, صلح کر لیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے کاروبار. ٹھیک ہے, میں اپنے بھائی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہوں. کچھ جو ٹائم بچتا ہے 16 گھنٹے بچتے ہیں, اس میں 8 گھنٹے وہ کر لے, 8 گھنٹے میں کر لوں. اس کو مینج کریں, ٹھیک ہے, مینج کر کے اتفاق میں برکت ہے, آپ کے کہنے کا مطلب. بالکل. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ نا ایک بڑی عجیب سی سٹوری, لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے نا گھر جو ہیں وہ عجیب و غریب سی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اب جیسے گوگی بھائی جانا, ان کی بڑے بھائی ایک ہی مشترکہ کاروبار ہے, ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ تھی. اب ان کا جو سیکنڈ ٹائم تھا, اس ٹائم انہوں نے آ کے دکان پہ بیٹھنا, تو لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا, دکان کا کاروبار کوئی نہیں ہے. اس کا حل یہ نہیں تھا کہ اس کی لڑائی کر دی جاتی یا اس کو بڑھاوا دیا جاتا, اس کا حل نکالنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ یہ دوبارہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے, ٹائم کو بائی کے ساتھ جب بھی ڈالیں گے, آپس میں گلے شکوے ختم کر کے دوبارہ کاروبار میں واپس آئیں گے. ہماری کچھ تجاویز ہیں جو ہم حکومت پنجاب, حکومت پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں. وہ تجاویز اگر حکومت مان جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کچھ سروے کر کے, کچھ تاجروں سے بات کر کے ایک تجاویز اکٹھی کی ہیں. تجاویز یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی دنیا ہم پھری ہے یا لوگوں نے ہمیں بتایا, پوری دنیا میں 2 سے 4 بجے, دوپہر 2 سے 4 بجے, یعنی کہ ظہر سے عصر کے ٹائم جو ہے وہ کاروبار بند ہوتے ہیں, ٹوٹل بند ہوتے ہیں. نماز کا وقفہ کہہ لیں, کھانے کا وقفہ کہہ لیں, پھر عصر کے بعد دوبارہ کاروبار کھولتے ہیں. اور اس دوران UAE میں لے کے جتنے بھی ہمارے نیئرسٹ کنٹریز ہیں, ایون کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے, وہاں بھی یہ رولز اپلائی ہوئے ہیں, آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے. اور وہاں پہ یہ 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کا مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے. لاک ڈاؤن اب ہم کہہ رہے ہیں, لیکن ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں, کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے, کوئی نماز کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد عصر کے بعد لوگ دوبارہ کاروبار کی طرف آتے ہیں. یہ ایک انرجی کرائسس سے نکلنے کا ایک آسان حل ہے کہ 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے سے 2 سے 4 ایک مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. اس 2 گھنٹے سے جو ہماری انرجی اور توانائی جو سیو ہوگی, میرا خیال میں یہ 8 بجے 10 بجے کی دکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک چیز جیسے گوگی بھائی نے کہا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں ایک سائڈ پہ لانا چاہیے. ایک ہم نے چھوٹی سی بات کی پروگرام کے دوران کہ یہ جو شو والی شاپس ہیں, یہ جو جیولرز کی شاپس ہیں, یہ جو کپڑے کی شاپس ہیں, ایکسٹرا لائٹس لگی ہوئی ہیں. کیوں 40 بلب لگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ 2 بلب سے بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. آپ کی مہربانی ہے اس چیز پہ بھی تھوڑی سی سختی کریں, کیونکہ ہم نے انرجی بچانی ہے. یہ ساری لڑائی توانائی بحران کی ہے, پٹرول بحران کی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ والی چیز والی سائٹ پہ جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم غریبوں کی دکانیں بند کرائیں, محلے دار میں ایک چھوٹا سا کریانے کی وہ دکان کرتے ہیں, ان کی دکانیں بند کرائیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. ایڈوائز ضرور لیا کریں, ایک پبلک سروے ضرور کروایا کریں. یہ میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے, حکومت پنجاب سے درخواست ہے, ایک چھوٹا سا پبلک سروے کروایا کریں. آپ اپنا ہی سوشل میڈیا بھیج کے ایک سروے کروایا کریں کہ اس کا حل کیا ہے. پبلک اوپینین لازمی لیا کریں. خالی ان تاجروں کی بات نہ سنا کریں جن کے پاس بہت لگژری لائف گزارے ہیں, جو بلینئر ہیں, جو ملینئر ہیں, جو مل آنر ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے پاس, اپنا چارٹرڈ پلانر. ان کو کچھ نہیں لگے گا کہ غریب کی زندگی
कैसे गुजरी और गरीब जो है वो किन मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारा। उम्मीद करता हूँ नकलबाजिया में आज एक नया प्रोग्राम थोड़ा सीरियस नोयत का था लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाला प्रोग्राम पसंद आया होगा और नकलबाजी फैमिली से एक दरख्वास्त है कि चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और आपके पास कोई और भी मज़े मज़े के मौज़ूआत हैं सोशल और लाफ्टर तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदनुआ के लोगों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। एक छोटी सी दरख्वास्त, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।